Welcome, student, to the new session of motion in one dimension. In previous class, we did some number of questions on motion under gravity. So first of all, we will cover that motion under gravity remaining questions. Okay, within 1 minute हम लोग start कर रहे हैं. Okay, so let's start with the question number one. A stone is dropped. Please note it down the question from a rising balloon at a height of 76 centimeter above the ground. Above the ground and reaches the ground in 6 seconds. Reaches the ground in 6 seconds. अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान दीजिएगा. Reaches the ground in 6 seconds. What was the velocity of balloon when the stone was dropped? So we are given that take g equal to 10 meter per second square. Now we are having four answers. 50 by 2, 3 meter per second upward. Second answer 52 by 3 meter per second downward. अच्छे से आंसर को नोट करिए. C 3 meter per second. Fourth 9.8 meter per second. So we assume that let this is a ground. Let this is a balloon at a height of 76 centimeter. From a balloon, a stone is dropped. Let the velocity of the balloon when the stone was dropped is u. उस समय मान लीजिए कि बैलून की वेलोसिटी u है जब स्टोन को ड्रॉप किया गया था. बिकॉज देखिए स्टोन इज मूविंग विद बैलून, so the velocity of stone is also u. Let us discuss the motion of stone. It will go up and finally it will reach the ground like this. So
For the motion of stone, displacement is -76 centimeter. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था the direction of initial velocity is positive and that of direction opposite to the initial velocity is negative. And displacement is in downward direction, that is why it is taken as -76 centimeter. G always acts in vertically downward direction. So acceleration is equal to -g -10 meter per second square, 10 meter per second square. And initial velocity we do not know. We need to calculate. Time is given. Time is given how much? 6 seconds. Okay. आप क्या करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं u इंटू 6 -1/2 इंटू 10 इंटू 6 स्क्वायर -76 6u 5 टाइम्स 36 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा 36 इंटू 5 -180 सो 180 -76 अब देखिए यहाँ पे हमने एक गलती करी है डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए तो अब ये क्योंकि हम एमकेएस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.76 इक्वल टू 6u 179.4 divided by 6 that is the value of u. So this way you will get the value of u. क्योंकि हाइट इज 76 एक मिनट इस क्वेश्चन में कुछ हमें और करेक्शन करना पड़ेगा देखिए क्या करेक्शन करना पड़ेगा ये क्वेश्चन जहां से मैंने लिया है वहां कुछ उसमें गड़बड़ दिया है इट शुड नॉट बी 76 सेंटीमीटर आप इसको करेक्शन कर लीजिए प्लीज इट शुड बी 76 मीटर तो यहाँ पे भी हमें करेक्शन इसमें करने पड़ेंगे ये मीटर ही है और अब ये हमें -176 -76 we will get 104 divided by 6 that is u तो सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 52/3 so this way this question is really solved it's a very good question तो इसको आप नोट कर लो Are you done with this question? So similar question we will do. उसको आप चेक करिए और बताइए कि ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया
Now we'll take one question from AIMS 2017 examination. Okay, are you done? Direction of initial velocity is always considered positive. So this is our answer. 52 by 3. Definitely, we assume that balloon was moving in vertically upward direction. So this should be the correct answer. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. एक बात आपको याद रखना चाहिए फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. कोई सा भी चैप्टर हो, whether you are studying in 12th class or you are studying in a or you are a repeater, derivations 1, 2 theory, 3 basic concepts should be very clear to you. तो मैं अगली स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ. तो एक और बैलून बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम. That is from 2017 AIMS paper. Okay, I think you are done with it. आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा. सिंपल यूज ऑफ एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. बैलून को जब स्टोन से ड्रॉप करेंगे उस समय हमने सपोज किया कि बैलून का वेलोसिटी कितना है, यू है, तो स्टोन का भी यू होगा बिकॉज स्टोन वाज मूविंग विद बैलून. इट इज जस्ट डिटेच्ड फ्रॉम द बैलून. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम a balloon, AIMS 2017, moving upwards with a velocity, 12 meter per second. A packet is released. A packet is released when it is at a height of 65 meter from the ground. From the ground. The time taken by it to reach the ground will be, again G is taken as 10 meter per second square. All India Institute of Medical Sciences, entrance test 2017. The four answers are 5 seconds. Second answer is 8 seconds. Third answer is 4 seconds. Fifth answer is 7 seconds. So the question is based on the same pattern. अब देखिए आप लोगों को एक दिक्कत आती है. Suppose this is the ground. एक स्केच जरूर बनाइए. And balloon, this is the balloon. When it was at a height of 65 meter from the ground, a packet is dropped. इस समय बैलून का वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड. तो पैकेट का वेलोसिटी भी हम कितना मानेंगे, 12 मीटर per second. So this way the packet will reach the
ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट -65, u +12, a -c -10, और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ut प्लस हाफ AT²। एक आंसर आया, 5 सेकंड देखते हैं सही है कि नहीं। 5t² -12t -65 = 0. So t will be +12, 12² 144, पिछली क्लास में बताया था, -130, प्लस, तो ये थोड़ा गलत लिख दिया, इट शुड बी +325, 4 × 5 20, so it will be plus -4ac, 4 × 5 20 × 65 1300, ये 1300 आ गया और ये हो गया 10। अब देखो इसको सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, तो यू हैव टू टेक द रूट, तो ये हो जाएगा 144 अपॉन 10। अब आपको इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। वन फोर 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 का आपको रूट लेना है। (38/10). नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, टेकिंग द पॉजिटिव साइन 50/10, द आंसर इज 5 सेकेंड। The answer is 5 seconds. You can note down. तो ये एम्स का क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए एम्स का क्वेश्चन हो या नीट का क्वेश्चन हो, कहीं का भी किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, अब तक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, अगर आपको मेथड आती है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आर यू डन? आपने इसे नोट कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो नोबडी चैट्स, ग्रेट, इतना आप लोगों को समझाया। You should participate in the class. ओके तो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर तो आ गया भाई 5 सेकंड। मेथड भी समझ में आ गई है। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर प्रॉब्लम हमें इक्वेशन को सॉल्व करने में आती है, तो चलिए
अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ ए कितना था? ए कितना था? 5 था। बी कितना था? -12। और सी कितना था? -65। फॉर्मूले में रखिए एंड you'll get the answer. You'll get the answer. देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। If you have a dream, then you need to work hard. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। A stone is thrown vertically upward। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वर्टिकली अपवर्ड, और बहुत सिंपल भी है। वर्टिकली अपवर्ड with a speed with a speed u with a speed u from the top of a tower from the top of a from the top of a tower reaches the ground reaches the ground। देखिए अभी अच्छा क्वेश्चन है। reaches the ground with velocity 3u, then height of tower will be then height of tower will be so we have got four answer 3u square upon g, second answer 4u square upon g, third answer 6u square upon g, fourth answer 9u square upon g। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेक ए स्केच। दिस इज द ग्राउंड, this is your tower, let the height of tower is h, and from here the stone has been given the velocity u। It first goes upward, then reaches the ground with velocity। अब देखिए हमें कहा गया है it reaches the ground with velocity 3u। तो सबसे पहले वेक्टर कंसेप्ट हो जाए। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। हमें यूज करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी प्लस जी नेगेटिव, टाइम। अब हमें टाइम, अच्छा हमने गलत इक्वेशन यूज कर लिया। देखिए हमें वेलोसिटी दी है, हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, हम इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यूजिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव का ख्याल रखिए, -3u।
plus u square. G is negative because G acts in vertically downward direction, negative direction. Displacement is negative. So it is 9u square equal to u square plus 2gh. It will become 8u square equal to 2gh. So h will be 8u square upon 2g. It will be 4u square by g. So the answer is B. Now you can note down the answer. बस आप हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखिए तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगा. सो आर यू डन विद दिस? आपने ऐसे कर लिया? ओके. तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं और आपको थोड़ा थ्योरी ऑफ इक्वेशन मालूम होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं. अब देखिए, एक अच्छे लेवल का हम आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ओके. A stone falls freely under gravity. A stone falls freely under gravity. It is a very good question. It covers distance h1 in first 5 seconds. Distance h2 in next 5 seconds. And distance h3 in next 5 seconds. तो देखिए अब तक 15 सेकंड हो गए. Respectively. ठीक है. Then relation between h1, h2 and h3 will be first answer.
थर्ड आंसर। फोर्थ आंसर। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज अवर ग्राउंड। अब देखिए यहां से हमने स्टोन को ड्रॉप किया और यहाँ टाइम है 0 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद हमने सपोज किया कि स्टोन यहाँ होगा। 5 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, h1। फिर अगले 5 सेकेंड के बाद हमने सपोज किया, नेक्स्ट 5 सेकेंड के बाद हमने सपोज किया कि स्टोन इस पोजीशन पे होगा। पर टाइम लैप्स कितना हो चुका है अब तक? कॉमन सेंस की बात है, 10 सेकेंड हो गया। 5 पिछले पूरे हो गए थे, अब 5 अगले 10। फिर अगले 5 सेकेंड के बाद अब टाइम हमारा हो गया 15 सेकेंड। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट 5 सेकेंड में वो h1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेकंड 5 सेकेंड में वो h2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस h3। तो अब हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को यूज करेंगे। h1 1/2 g into 5 square, so we will get 25 g by 2। अब इस इक्वेशन की खास बात यह है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की, कि आप इसे डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 सेकंड है, यहाँ 5 सेकंड है, यहाँ 10 सेकंड है। अब आप देखिए फर्स्ट 10 सेकंड में स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फर्स्ट 10 सेकंड में स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? आंसर प्लीज। h1 है प्लस h2। तो अब हम 10 सेकंड के लिए फॉर्मूले को यूज करेंगे। h1 प्लस h2 इक्वल टू 1/2 g इंटू 10 स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 50g/2, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर कितना टाइम है? 0। यहाँ पर है 5 सेकंड, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 15। तो फर्स्ट 15 सेकंड में स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? h1 plus h2 plus h3। Now question is becomes very simple if you draw the sketch। इसलिए मैंने आपको कल पहली क्लास में एक ही चीज बोली थी, स्केच बनाइए 15 स्क्वायर। So it is 225 g by 2। अब इसको आप नोट कर लीजिए, हमें स्पेस लगेगी। हम अगली स्पेस पे जाएंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। We will solve it। We need space to go for it। I am moving to the next slide. If you have noted down, you don't chat. This is the problem with you people। आप पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको क्लास में। In next slide we are going to solve it। Okay,
तो अगली स्लाइड में जाते हैं और फिर अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, एक एक क्वेश्चन को 2 बार करिए, स्पीड इंप्रूव करिए, सबसे पहले एक्यूरेसी इंप्रूव करिए, सबसे पहले सीखिए, फिर एक्यूरेसी पर काम करिए। स्पीड तीसरा है, जब सब ये हो जाएगा तो स्पीड अपने आप आएगा। तो भाई H1 था 25G/2, H1 प्लस H2 था 50G/2, मतलब ये हो गया 25, एक मिनट, 25G। तो यहाँ पे हमने H1 की वैल्यू रख दी, so we will get H2 25G minus 25G/2, तो H2 भी आ गया 25G/2। अब H1 प्लस H2 प्लस H3 था हमारा 225G/2। यहाँ H1 और H2 दोनों की वैल्यू रख दी, 25G/2, 25G/2, S3 225G/2, so it will become 25G plus S3 equal to 225G/2. So S3 will be, it sharpens your brain, such questions को solve करने से बहुत फर्क पड़ता है। 225 by G minus 50G divided by 2, 175G/2। अब आपको एक खास बात बतानी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। रेशियो कैसे निकालते हैं सीखिए। H1:2, H2:2, S3 25G/2, 25G/2 and it will be 175G/2। तो देखिए सबसे पहले तो 25G से डिवाइड कर दीजिए, रेशियो को डिवाइड करने से हम कर सकते हैं। तो ये आ गया 1/2, 1/2, 25 से डिवाइड करने के कारण ये हो गया 7/2, इट बिकम्स 7/2। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1:1:7। अब हम आंसर पे जा सकते हैं। We have done some mistake, I think, in solving this question. H2 equal to 3H1. No, this is wrong answer. Some mistake we have done in solving this. फिर से चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट 5 सेकंड था, 25G/2 ठीक था। H1 प्लस H2 ये हो गया आपका, H1 plus H2 should be 50G. Okay, yes, this was the mistake. Thank you. ये देखिए ये मिस्टेक हो गई। तो सबसे पहले तो आप लोग इस मिस्टेक को सुधारिए, लेजर पॉइंटर से करते हैं। देखिए एक गलती हो गई तो हमारा सारा क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस गलती को सुधार लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस गलती को सुधारेंगे। ये इट शुड बी 50G, तो चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं, 50G, और यहाँ अब इसको सुधार सकते हैं। तो कंप्लीट ही सुधारना पड़ेगा। 50G माइनस
50 जी, तो ये आ जाएगा 75 जी/2, 75 जी/2 है ना, दैट्स गुड। 75 जी/2, तो H2 इक्वल टू हो गया 3H1। आंसर मिल गया है हमें। इसको हम थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, एक डेटा हमने गलत किया था, सिर्फ एक डेटा हमने गलत किया था, उससे हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। लेकिन मेथड सीखिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, टाइम लगता है। अब यहाँ पे भी हम इसे पूरा रफ करना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी में बस अगर आपने एक बार बेसिक कंसेप्ट सीख ली, आप समझ लो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी और आराम से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये था 225 जी/2। अब H1 हमें मालूम है 25 जी/2। H2 भी हमें मालूम है 75 जी/2 प्लस H3 225 जी/2। तो ये हो गया 100 जी/2। 25 और 75 ऐड होके 100 जी/2, कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम, है ना। 225 जी/2 और S3 हो गया 225 जी/2 माइनस 100 जी/2, तो ये हो गया 125 जी/2। तो S3 will be 5H1। S3 will be 5H1। मेरे ख्याल से हमारा आंसर आ गया है। देखिए अब आंसर बिल्कुल आ चुका है। टाइम आप ही का है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कवर करना है। 10 का स्क्वायर क्या हो गया, ये 50 जी हो गया। और थोड़ा अपना कैलकुलेशन सुधारिए। H1 प्लस H2 50 जी है, तो 25 जी में से 50 जी माइनस चला जाएगा, तो 100 माइनस 25 75 V1। 3H1 बिल्कुल सही है। तो हमारा लेट्स टिक द आंसर। सबसे पहले जरा हम आंसर को टिक कर दें। ये हमारा बी इज द आंसर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेथड तो समझ गए हैं कि कैसे इसको किया जाता है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमें करने पड़ेंगे। ओके, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओ सॉरी, आप सीखिए, अब मेथड पे ध्यान दे दीजिए, है ना। तो बाकी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो मेथड शुड बी क्लियर टू यू। अब मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम नेक्स्ट वन। A stone is dropped into a well. A stone is dropped into a well in which the level of water is at below the top of well. If V is the
velocity of sound. If v is the velocity of sound, the time t after which, sorry, after which the splashes, splash, splash मतलब छपाका, स्टोन को ड्रॉप करेंगे, वेल के वाटर से स्ट्राइक करेगा तो साउंड क्रिएट करेगा, उस साउंड को हम कहते हैं स्प्लैश. The time t after which the splash is heard is given by a wonderful question, 2h upon v. Second answer, 2h upon v plus h upon v. Third answer, 2h upon g plus h by g. Fourth answer, t equal to root of 2h by g plus 2h by v. Important question है, आप इसे नोट कर लीजिए. तो अब डेफिनेटली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. देखिए, टाइम ऑफ स्प्लैश includes two times. First, time taken by stone to reach the water level. Let this time is t1. Second, time taken by sound to reach the listener. जो साउंड सुन रहा है, स्प्लैश हुआ, स्प्लैश का साउंड क्रिएट हुआ तो वो साउंड अब तक भी तो ट्रैवल करेगा, तो आप हुए लिसनर. लेट दिस टाइम इज t2. अब देखिए, फॉर द मोशन ऑफ स्टोन हम अब बहुत सिंपल चीजें यूज कर सकते हैं. ड्रॉप कर दिया, ये पानी का लेवल है, h s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, हाफ gt t1 स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे t1 माना है, तो t1 हो गया रूट ऑफ 2h बाय g. तो ये टाइम, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. अब बी सी डी में से हम आंसर को क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं और देखते हैं भाई कौन सा आंसर है. लेट्स फाइंड इट आउट which is the correct answer. तो आपको समझ में तो आ गई ना बात. पहला टाइम तो वो होगा जो स्टोन वाटर लेवल तक पहुंचने में लेगा, कितने टाइम के बाद वो स्टोन वाटर को स्ट्राइक करेगा, फिर साउंड प्रोड्यूस होगा, फिर साउंड ट्रेवल करेगा आप तक. तो स्टोन डेफिनेटली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नीचे वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए, h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है.
उतना ही डिस्टेंस साउंड को भी ट्रेवल करना पड़ेगा आप तक पहुंचने के लिए। अब T2 को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ स्प्लैश को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आर यू डन विद दिस? आपने इसे कर लिया? बी रेगुलर इन द क्लास एंड एंजॉय द क्लास। यू कैन एंजॉय इट। बने जब तक बनेगा तब तक सब अच्छा लगेगा। ओके, बहुत सारे लोग चैट नहीं करते, पेनल्टी लगानी पड़ेगी सब पे। इट इज योर ओन क्लासरूम। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि साउंड कितने टाइम में आप तक पहुंचेगा। तो देखिए, टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द लिसनर, velocity equal to of sound, simple formula, distance traveled upon time taken. Distance h है, time is t2, so t2 will be h upon v. So time of splash will be t, t1 plus t2. तो हम इसको लिख लेते हैं, रूट ऑफ 2h by g plus h upon v. So answer is, correct answer is B. Correct answer is B. So this is a very good question. अब देखिए एक और मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है जो हम करने वाले हैं। तो आई थिंक यू आर डन विद इट। आपने इसे नोट कर लिया। देखिए, क्लास में रेगुलर आइए, क्लास को पार्टिसिपेट करिए, क्लास को रिवाइज करिए, डेफिनेटली आपका फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग बिग डील। फिर आज अभी कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रैक्टिस करिए। रूट तो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अब देखिए, ये ग्राउंड है और ये h हाइट है। यहां से आपने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और ये हो गई निगेटिव डायरेक्शन। बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो देखिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम यूज करें, ये होगा माइनस एच प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी डाउनवर्ड एक्ट करता है, नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करें, माइनस वी प्लस यू माइनस जी टी, तो जी टी विल बी इक्वल टू यू प्लस वी। तो टाइम आ गया u प्लस वी बाय जी।
अब हम तीसरा इक्वेशन यूज करें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी, निगेटिव है, माइनस एच नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये देखिए ये इक्वेशन बन गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। आपके फॉर्मूले बन गए। अब टाइम को भी निकाल सकते हैं, थोड़ा कलर बदलेंगे। u प्लस वी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में दिक्कत होती है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वो टाइम है जिसमें बॉडी ग्राउंड पर पहुंचेगी। पर एक दिक्कत है, ये रूट तो कैलकुलेट ये रूट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रूट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप इक्वेशन, अब देखिए मैंने इक्वेशन फ्रेम बना दिए हैं आपके। अब यहाँ पर आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका प्लस माइनस ही खत्म। लेकिन आप उसे सीखें तो ज्यादा अच्छा होगा। concept of positive and negative, direction of initial velocity, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, पिछली क्लास में भी बताया था, इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। अब फिर मिलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं।